قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کارکنان کے ہمراہ لندن میں نماز عید الفطر ادا کی۔ اس موقع پر پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کارکنان کے ہمراہ نماز عید الفطر ادا کی۔ لندن میں مقیم پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے نماز عید حسین نواز کے دفتر میں ادا کی۔ اس موقع پر اسحاق ڈار، حسن نواز، حسین نواز، عابد شیر علی اور شریف خاندان کے دیگر افراد نے اکٹھے نماز عید ادا کی۔ اس کے بعد تمام افراد نے روایتی انداز میں گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ نماز کے بعد پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ لندن سمیت برطانیہ کے دیگر شہروں میں عید الفطر نہایت عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و خروش سے منائی گئی۔ عید کے اجتماعات میں امت مسلمہ کی سربلندی، مظلوم کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ دنیا کے بیشتر ملکوں کی طرح برطانیہ میں بھی پیر کے روز عید الفطر مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ برطانیہ کے ہر چھوٹے بڑے شہر کی مساجد میں عید الفطر کی نماز کے روح پرور اجتماعات ہوئے، جن میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ سعودی عرب میں ماہ شوال کے چاند کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد ریجنٹس پارک مسجد لندن، ایسٹ لندن اور ویسٹ لندن نے پیر کے دن عید منانے کا اعلان کیا، جس کے بعد برطانیہ بھر میں زیادہ تر لوگوں نے عید الفطر پیر کے روز منائے۔ لندن میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد نے پیر کے روز عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ وَأَقْرَبُ بِالْحَبْلِ الْوَرِيدِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ نماز عید کا بڑا اجتماع مرکزی لندن کی ایسٹ لندن جامع مسجد میں ہوا، جس میں مقامی مسلم کمیونٹیز کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خاص طور پر عید کے اجتماعات میں خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر علماء نے نماز عید کے اجتماعات میں مسلم امہ کے اتفاق، اتحاد اور استحکام کی ضرورت پر زور دیا اور دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے دعائیں مانگی۔ تمام جو عبادات تیرے کرم سے ہوئی انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس دن کے موقع پر اپنے عنایات کریمہ کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ مؤمنات مرحومین مرحومات کی بخشش فرما۔ نماز عید کے اجتماعات میں اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد کے علاوہ دیگر ممالک کے مسلمان بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر مسلم کمیونٹیز نے روایتی انداز میں گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ غلام حسین وان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ چاند رات کے جشن کے بغیر عید کا مزہ پھیکا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ سے لندن کے کئی علاقوں میں چاند رات کی رونقیں عروج پر ہوتی ہیں۔ اس سال کرونا کی وبا قابو میں تھی تو لوگوں نے چاند رات کو بھرپور انجوائے کیا۔ لندن کے رائل نواب میں چاند رات کی مرکزی تقریب ہوئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے اپنی من پسند اشیاء کی خریداری کی۔ چاند رات کے رنگ بتا رہے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان اپنی اس رپورٹ میں۔ چاند رات نہ منائیں تو عید کیسی؟ چاند رات کی رونق کے بغیر عید کا مزہ ہی نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 2 سال کووڈ کے وقفے کے بعد لندن میں چاند رات کی کئی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ لندن اور برطانیہ کے مختلف بازاروں میں چاند رات منائی جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ کمیونٹی کو ایک خوبصورت ہال میں چاند رات منانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ پروگرام کے آرگنائزر آسم یوسف اور سمرین چودھری نے بتایا، چاند رات منانے کا تجربہ بہت اچھا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کر کے بہت اچھا فیڈ بیک دیا۔ میں تو 5 سال سے چاند رات آرگنائز کر رہی ہوں اور اس سال تو ہم نے کہتے ہیں نا کووڈ کے بعد ساری کسر ہم نے نکال لی ہے۔ ہم اس وقت رائل نواب کے اندر 2 فلور کے اندر، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کے اندر ہم چاند رات کریں۔ اس وقت یہاں پہ تقریباً 75 ایگزیبیٹرز ہیں جو ہمارے ساتھ ایگزیبٹ کر رہے ہیں۔ فار لانگ ٹائم کووڈ کے بعد یہ پہلا ایونٹ ہے جو کہ ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ آفٹر لانگ ٹائم۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سال کے بعد ہمارا یہ ایونٹ ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار دی ایونٹ آرگنائزرز اینڈ یس، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں پہ چاند رات جیسا وائبس آ رہے ہیں یہاں پہ، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ چاند رات والے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں پہلی دفعہ تو نہیں، یہاں پہ ہر دفعہ آتی ہوں، ہمیشہ بہت رش ہوتا ہے۔ ابھی بھی اتنی دنیا آئی ہوئی ہے۔ بہت اچھا ایونٹ ہے۔ کورونا کے بعد یہ پہلا چاند رات کا ایونٹ ہے جو ہم یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تقریباً 2 سال کے بعد یہ پہلا ایونٹ ہوا ہے۔ چاند رات کی رونقیں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماہ رمضان کی عبادات کے بعد یہ ایک ایسا انمول تحفہ ہے کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آج یہ اچھا لگا کہ اتنی کمیونٹی جو ہے وہ اکٹھی ہوئی آج اس موقع پہ، وہ اتنے زیادہ پاکستانی ہیں۔ ریئلی گڈ، فیلنگ گڈ۔ چاند رات کی خوشیوں میں شریک ہونے والوں کا کہنا تھا کہ 3 بجے سپہر سے نصف شب تک بھرپور رونق رہی۔ کہیں ملبوسات کے سٹالز لگے تو کہیں جیولری کے سٹالز اپنی سجدن بکھیرتے رہے۔ مہندی کے سٹالز پر خوب رش رہا۔ رنگا رنگ چاند رات میں میئرز اور ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ مقامی کمیونٹیز کے افراد کو بھی چاند رات میں مدعو کیا گیا تاکہ وہ بھی پاکستان کی خوبصورت ثقافت سے روشناس ہو سکیں۔ Chandra is going really well in here, and I think this was the
best idea they've put together to bring all the Muslim Ummah together after the whole month of Ramadan, and it looks amazing. بہت رونق لگی ہوئی ہے اور بہت زیادہ stalls ہیں, بہت nice vibe آ رہی ہے. For a Chand Raat to experience different shopping and get some mendi done as well. My kids are with me, my friends are with me, so we are a business as well. چاند رات کی سیلیبریشن بہت بڑھیا ہو رہی ہے نواب میں, اور یہاں پہ لوگ اتنے کلرفل کپڑے میں ریڈی ہو کے آئے ہیں اور چاند رات منانے کے لیے, اور بہت سارے اچھے اچھے اسٹول بھی لگے ہیں کپڑوں کے, جویلری کے. آج بھی بہت زبردست وہی انرجی لگ رہی ہے جو پہلے سال تھی, اور وہی انرجی آج بھی لگ رہی ہے. عید ہو یا کوئی اور قومی دن, برطانیہ میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی اپنے قومی تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہے. خاص طور پر عید کے موقع پر رونق عروج پر ہوتی ہے, اور اس بار کورونا کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد خاص گہما گہمی دکھائی دی. آرگنائزرز کا کہنا تھا کہ کووڈ-19 کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے. ہر طرف چاند رات کی رونقیں ہی رونقیں ہیں, اور لوگ مہندی لگوا رہے ہیں, کپڑے نئے خرید رہے ہیں, بچے بھی جو ہے وہ چاند رات کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں. ساتھ رپورٹر وسیم کابل کے ساتھ غلام سلمان, 92 نیوز, لندن. لیوٹن میں بھی عید الفطر جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی گئی. اس بار برطانیہ سمیت پورے یورپ میں تمام مسلمانوں نے ایک ہی دن عید منائی, اور مختلف کمیونٹی کے افراد نے ایک ساتھ رب کے حضور سربسجود ہو کر اسلامی بھائی چارے کو اجاگر کیا. دیکھتے ہیں لیوٹن سے چودھری نثار گلشن کی یہ رپورٹ. جامع اسلامیہ غوثیہ الہیرا ٹرسٹ مرکزی جامع مسجد کے علاوہ لیوٹن کی کم و بیش 25 مساجد میں عید الفطر کے بڑے اجتماعات ہوئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, الوداع, 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 یا شہر رمضان, الوداع. نمازیوں کی کثیر تعداد کے باعث عید الفطر کے کئی اجتماعات کا انعقاد کیا گیا. 3 جماعتوں میں کثیر تعداد میں مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے نماز عید ادا کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس موقع پر اسلامی بھائی چارے کے پرکیف مناظر دکھائی دیے. مسلمانوں نے نماز عید ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے کو گلے مل کر عید الفطر کی مبارکباد پیش کی. اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے نماز عید کی ادائیگی کے بعد نمازیوں نے سارے عالم اسلام کو عید کی مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. عید الفطر محبتوں کا پیغام, نفرتوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ اور ایک عظیم الشان مذہبی تہوار جو ملت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے عطا فرمایا, تاکہ محبتوں کے فروغ, نفرتوں کو مٹانے کے لیے اللہ کے حضور میں صدق کے دل سے توبہ کرنے, استغفار کرنے, رجوع اللہ کرنے کے لیے بہترین موقع. میری طرف سے آپ سب حضرات کو عید مبارک. آپ سب صاحبان کو عید مبارک ہو. میری طرف سے تمام اہل لوٹن کو اور اہل اسلام کو عید مبارک. عید مبارک to everyone from Wasim, Shaud, Kunain and Miki and family. Have a wonderful day today, and please remember your brothers in Palestine and Kashmir. Amazing Eid. May Allah accept all your du'as throughout Ramadan. May Allah accept all your efforts. Wish everyone an amazing Eid. May Allah bring this Eid, bring prosperity, bring longevity and wealth throughout your life. Ameen. I hope you're all doing well. Alhamdulillah, it's a heartwarming feeling being here. We're at the Jamia Islamia Ghosya Masjid. It's Eid al-Fitr. MashaAllah, a beautiful environment with lots of amazing people. تمام حضرات کو میری طرف سے اور میرے سب بھائیوں کی طرف سے عید مبارک. اسپیشل پاکستان اور آزاد کشمیر کے تمام بھائیوں کو عید مبارک قبول ہو. برطانیہ برف اور یورپ میں آج مسلمانوں نے ایک ہی دن عید منائی ہے. میری طرف سے تمام اہل اسلام, آزاد کشمیر اور پاکستان کو دلی عید مبارک. عید کی خوشیوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کو جو پاکستان, آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر, فلسطین میں ان کو نہ بھولیں, ان کی بھی مدد امداد کریں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عید اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی یاد رکھیں. تمام امت مسلمان کو عید الفطر کی ڈھیر ساری خوشیاں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یہی انکریج کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے ماہ رمضان میں اللہ کے حضور عبادت کی ہے اور اپنے اسلام کے اصولوں پہ زندگی بسر کی ہے, اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے پورا سال اس چیز پہ قائم رہیں. پاکستانیوں کے علاوہ دیگر ممالک کے مسلمانوں نے بھی اس موقع پر اپنی خوشی کا اظہار کیا. Day of peace, love and respect, inshallah.
Happy Eid from Qadri Brothers. Yeah, my name is Faiz. Eid Mubarak to all my Muslim brothers and sisters all over the world. This is Luton and Eid Mubarak to everyone. Eid Mubarak to every Muslim in the community. May Allah accept our prayers and accept as an act of ibadah. आने लुटन को और पूरी दुनिया के मुसलमान उम्मा को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमन का दिन है और मेरी तरफ से और पूरी हमारी कम्युनिटी की तरफ से सबको ईद मुबारक। I'm a resident here in Luton. I want to use this opportunity to wish all the Muslims around the world Eid Mubarak. जामिया इस्लामिया गौसिया के मुहतमिम काजी अब्दुल अजीज चिश्ती ने मिलत इस्लामिया बिलखसूस पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगी। वतन अजीज की खुशहाली और तरक्की के लिए भी दुआएं की गईं। चौधरी निसार गुलशन, 92 न्यूज़, ल्यूटन। बर्मिंघम स्मॉल हीट पार्क में नमाज ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें मिडलैंड्स भर से ख़वातीन व हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत की। वेस्ट मिडलैंड्स के मेयर एंडी स्ट्रेट ईद के इज्तिमा में खुसूसी तौर पर शरीक हुए और मुस्लिम कम्युनिटी को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद के इज्तिमा में 20,000 से ज़ायद अफराद ने ईद की नमाज अदा की। मज़ीद तफसीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। यूरोप और बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा ईद का इज्तिमा बर्मिंघम के स्मॉल हीथ पार्क में होता है। 2 साल कोविड-19 की पाबंदियों के बायस ये इज्तिमा ना हो सका और अब जब इस इज्तिमा का आगाज हुआ तो बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ग्रीन लेन मस्जिद और दीगर मसाजिद ने बाहमी मिलकर स्मॉल हीथ पार्क में एक साथ नमाज ईद का एहतमाम किया। सुबह फजर के बाद ही लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। न सिर्फ बर्मिंघम बल्कि गिरदोनवा के इलाकों से भी लोग खानदानों समेत शिरकत करते हैं। मिडल ईस्ट, यूरोपियन, एशियन, सोमाली कम्युनिटी और दीगर ममालिक के मर्दो ख़वातीन इस ईद के इज्तिमा में हमेशा शिरकत करते आए हैं। नमाज ईद के खुतबे में ग्रीन लेन मस्जिद के खतीब ने खिताब करते हुए कहा कि ईद उल फितर का ये इज्तिमा मजहबी लासानी मुनाफरत, इस्लामोफोबिया के खिलाफ शदीद नफरत का इजहार करता है। मुल्की और आलमी तेजी से तब्दील होती हुई सूरत हाल के पेश नजर जिस इत्तेहाद की जरूरत आज है, पहले कभी न थी। कोई हमें तकसीम करके अपने मनफी मकासद की तकमील नहीं कर सकता। इज्तिमाई दुआ के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक everyone who's suffering, everyone everywhere and have food. Eid Mubarak everybody. We're really happy that Green Lane has put on such an amazing event today. All the Muslims around the world, Palestine, Kashmir, Ukraine, Syria, all the people are suffering. Eid Mubarak. For all the Muslims around the world, may Allah Ta'ala make it a very, very happy day for all those that aren't even able to celebrate it properly. So inshallah, may Allah Ta'ala help them. I'll say Eid Mubarak to all the Muslims on here. It's so lovely to see so many people here today, but also I'm an environmental activist. So I'll say to people how important the environment is to us, all of us, to make sure that we keep it clean. आज इधर नमाज पढ़ने की बड़ी अच्छी फीलिंग हुई थी। ये जो बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है, ये जो बिग फैमिली है, आज दिन बहुत अच्छा था, बड़ा मजा आया। Eid Mubarak to everyone, to all the viewers here. Hope you have a very blessed Eid. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all your fasting, your good deeds in Ramadan, and enjoy your day. So enjoy your time with your family, have lots of nice food and enjoy the time. बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, बहुत बड़ा इज्तिमा था यहाँ पे। जिस तरह पाकिस्तान में हम ईद मनाते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल हमें कमी महसूस नहीं हुई और काफ़ी हज़ारों की तादाद में मिक्स रेस के जो है ना माशाल्लाह सारे मुस्लिम ब्रदर जमा हुए थे। फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लगा। जिस तरह पाकिस्तान में हम ईदगाह में जाते हैं और इधर ये फर्स्ट एक्सपीरियंस थी, सारे हर किस्म के मतलब है कि कंट्री के लोग इधर इकट्ठे हुए हैं और बहुत अच्छा लगा। और मेरी तरफ से पूरे आलम इस्लाम को ईद मुबारक। इस दौरान मुंतजमीन में से हुमायूं सलीम, वेस्ट मिडलैंड्स मेयर एंडी स्ट्रीट, पुलिस कमिश्नर और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बर्मिंघम मल्टी कल्चरल फैमिलीज का शहर है और तमाम ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मर्दो ख़वातीन ने एक साथ ईद के इज्तिमा में शिरकत करके दुनिया को इत्तेहाद और इत्तफाक और सलामती का पैगाम दिया। Good morning from Small Heath Park for Eid prayers, and can I say Eid Mubarak to everybody who is celebrating. People had a peaceful and restful Ramadan, and I hope everybody has a really fantastic Eid. It's great to see everybody back in the park after 2 years where we haven't been able to gather. मुसलमानों ने यहाँ स्मॉल हीथ पार्क में इकट्ठी ईद की है और हमारी तरफ से तमाम कश्मीर के मुसलमान,
फ़लस्तीन, बर्मा और जितने भी मुसलमान हैं हम उनको उनकी खुशियों में हम उनको शरीक करते हैं. Just want to say a big thank you for the opportunity and invitation to attend Small Heath Park this morning. It's been an absolute pleasure. It's much appreciated. গোটা বিশ্বের মানুষের ঘরে ঘরে, গোটা বিশ্বের মুসলিমদের ঘরে ঘরে যেন আল্লাহ শান্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং মুসলিম ঐক্য আবার আমাদের মধ্যে ফিরে দেয়. আমরা ঐক্যতার সাথে আবার যে ইসলাম যে শান্তি, সেই শান্তি যেন আমরা আবার গোটা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এবং সেই উদাহরণ আমরা সৃষ্টি করতে পারি, এই কামনা করি এবং সবাইকে আবারও ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার আলোচনা আমি শেষ করছি. This is the Celebrate Eid event. Alhamdulillah, we've just finished the prayer and there were tens of thousands of people here. It was an amazing sight. We've had the coronavirus pandemic for almost 2 years and we couldn't organize this event. You see sites like this in many Muslim countries across the world. Good morning, I'm Andrew Smith. I'm the Director of Interfaith Relations for Bishop David, the Bishop of Birmingham. And I just want to say a huge thank you to the Green Lane Masjid for inviting me to this amazing Eid celebration in Small Heath Park. It's wonderful to be back after 2 years of not being able to be here. And it's just a pleasure to be with my Muslim friends as they're celebrating Eid. नमाज़-ए-ईद के इज्तिमा के दौरान बर्मिंघम सिटी कौंसिल समेत फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, वेस्ट मिडलैंड पुलिस समेत तमाम सर्विसेज ने इस इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा किया. ताहद निगाह आवाम ही आवाम नजर आ रही है. हर गेट और एंट्री रास्तों पर रज़ाकारों की टीम काम कर रही थी. इस मौके पर खाने के फ्री स्टॉल लगाए गए, शॉपिंग के लिए मुख्तलिफ स्टॉल और बच्चों के लिए फन फेयर का भी एहतमाम किया गया. ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा स्मॉल ईद पार्क में हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत करके नमाज ईद अदा की. रिपोर्टिंग टीम कैमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई है. ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस बार बरतानिया में एक ही ईद मनाने पर खुशी का इजहार किया. तफसीलात के लिए देखते हैं वक्कार बाबर मुगल की ये रिपोर्ट. बरतानिया के दीगर शहरों की तरह ब्रेडफोर्ड में भी ईद के रंग. ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रवायती जोशो जज्बे के साथ ईद सईद मनाई. ब्रेडफोर्ड में बसने वाले पाकिस्तानियों ने मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ नमाज ईद अदा की. ब्रेडफोर्ड की दर्जनों मसाजिद में ईद की नमाज अदा की गई. हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की. बारिश और खराब मौसम के बावजूद लोग जौक दर जौक नमाज ईद की सादत हासिल करने के लिए मसाजिद का रुख करते रहे. ब्रेडफोर्ड की फैजान मक्का मस्जिद में इमाम मस्जिद ने खिताब करते हुए कहा कि उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क कौम, उम्मत मुस्लिमा और कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई. बोला जो बीमार है तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा. इलाही तंदुरुस्तों बेरोजगार हैं तमाम की तंदुरुस्तियां बेरोजगारियां दूर फरमा. जिनके घरों में मसाइल हैं परेशानियां तमाम के मसाइल परेशानियों को हल फरमा. नमाज ईद के बाद 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमवतनों को ईद की खुसूसी मुबारकबाद पेश की. तमाम जो हमारे अहले सुन्नत और तमाम मुसलमान हैं जो सबको दावत इस्लामी की तरफ से ब्रेडफोर्ड फैज़ान मक्का की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक. अल्लाह तबारक तआला सबको खैर आफियत से रखे. अल्लाह तबारक तआला हमारे मुल्क को भी खैर आफियत में रखे. नमाज ईद उल फितर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक उम्मत मुस्लिमा को एक अजीम तोहफा भी है. तमाम ब्रेडफोर्ड के मुसलमानों को ईद मुबारक. बड़ी खुशी है जी ये ईद हुई है. जितने मेरे भैन भरा दोस्त संगी उन्हें सारे की मेरी तरफ ईद मुबारक. ईद मुबारक कुल मुसलमान भरावां की और बहुत खुशी हुई है कि इकट्ठियों ईद हुई है. अल्लाह ताला सब की इत्तेफाक चलने तौफीक अता फरमाए. मुसलमानों हमारी तरफ से ईद मुबारक हो. अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम एक साथ ईद मना रहे हैं. Today, Alhamdulillah, in Bradford, UK, Fazani Makkah Masjid, we had our Eid al-Fitr namaz. Alhamdulillah, a lot of brothers attended. There were 3 jamaats, Alhamdulillah. नमाज ईद के बाद शुरका के लिए खुसूसी दावत का एहतमाम किया गया. स्टॉल्स लगाए गए और नमाजियों की खातर तवाज़ो की गई. बरतानिया में इस मरतबा तमाम मकतबा फ़िक्र ने ईद एक ही दिन मनाई, जिसे मुस्लिम कम्युनिटी ने खुशाइन करार दिया और इस बात का आज़म जाहिर किया कि मुस्तकबिल में भी यकजहती की इस फ़ज़ा को कायम रखा जाएगा. जहाँ ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई, वहाँ तमाम मकतबा फ़िक्र का एक साथ ईद मनाना भी खुशाइंद करार दिया गया. वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड. स्कॉटलैंड के शहर एडम्बरा और गिरदोनवा में भी ईद रवायती जोशो खरोश से मनाई गई. इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की खुशी काबिले दीद थी. 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था, लॉकडाउन की पाबंदियां नरम होने की वजह से इस बार ईद का मजा दोबाला हो गया. दुनिया भर से बसने वाले पाकिस्तानियों को ईद मुबारक हो.
ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरी तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ईद है अपने बहन भाइयों के साथ पाकिस्तान में जाकर मनाऊँ। मैं बहुत मिस करता हूँ पाकिस्तान को। मेरी तरफ तो सारे अहले पाकिस्तान नू ईद मुबारक। एंड मैं इस मौके पर कहना चाहना ईद की खुशी आ रही है, सारे अपने भैन भरा गरीबां का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को ईद मुबारक और पाकिस्तान की ईद बहुत याद आ रही है। मेरी तरफ से और तमाम पाकिस्तानी जो एडनबरा में मुकीम हैं उनकी तरफ से पूरे पाकिस्तान और अहले इस्लाम को बहुत ईद मुबारक। सब मुसलमानों को ईद मुबारक। इस ईद के इस मौके पर हमें गरीब बहन भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए और हमें पाकिस्तान की ईद बहुत याद आती है। मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ और अपने मीर भाइयों को कहता हूँ कि जितने भी अपने अहल हुबाब गरीब हैं और गरीब गुरब हैं उनका ख्याल रखें। ईद उल फितर के इस मौका पर मेरी तरफ से आपको और आपके तमाम अहले खाना को दिली ईद मुबारक। अपने मुल्क आंदा ईद का मजा ते मेरी तरफ सारे भैन भरावां नूं ईद मुबारक मैं कहना चाहना। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन, अहले यूके जितने भी लोग यहाँ मुसलमान बसते हैं सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मैं दिल की गहराइयों से ओवरसीज की तरफ से सारे पाकिस्तानियों को दिल की ईद मुबारक कहता हूँ और साथ साथ वो जो पाकिस्तान की ईदें हैं वो दोस्तों का जुर्मट, रात को चांद रात को बाहर जाना और सुबह उठ कर सवैयाँ खाना, फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना, वापस आकर 2 घंटे लोगों दोस्तों को मिल के फिर वो चीज़ें बहुत हम लोग मिस कर रहे हैं। पाकिस्तानी ईद को बड़ा मिस करते हैं और ये पेशगी ईद मुबारक हमारी तरफ से सब पाकिस्तानियों को कि जो पाकिस्तान में जो ईद के जो रंग है वो यहाँ पे तो नहीं है, वो मिस करते हैं हम। यहाँ पे सारे पाकिस्तानी मिस करते हैं। मैं पाकिस्तानी अपनी कौम को, अहले इस्लाम को अपनी तरफ से और दिल की गहराइयों से और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक बोलता हूँ। स्कॉटलैंड या इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਈਦ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਮੌਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਈਦ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਆ। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की अमरीका में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईद उल फितर के खुसूसी पैगाम में सफीर पाकिस्तान का कहना था, आज दुनिया भर में ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं जिनमें दीगर मज़ाहिब के लोग भी हमारे साथ शरीक हैं। सदर बाइडन व्हाइट हाउस में ईद की खास तकरीब मुनक्किद करेंगे। आइए इस मौके पर सब मिलकर दुआ करें कि पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम हो। आज मैं अमेरिका में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों और मुसलमानों को ईद के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ और आज पाकिस्तान में और सारी दुनिया में ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो रहे हैं। सदर बाइडन व्हाइट हाउस में ईद की ख़ास तकरीब मुनक्किद करेंगे। आइए इस मौके पर हम सब मिलकर दुआ करें कि पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम हो। अमेरिका में 2 साल के वक्फे के बाद ईद उल फितर के रिवायती मजहबी इज्तिमात मुनक्किद हुए जिनमें हजारों मुसलमानों ने रिवायती जोश व खरोश के साथ नमाज ईद अदा की। इस बार अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में एक ही रोज ईद मनाई गई। तफसीलात वाशिंगटन डीसी से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। अमेरिका में मुसलमानों की तादाद 40 लाख से बढ़ चुकी है जो कि हर दीनी त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस साल सऊदी अरब के साथ ही अमेरिका में ईद उल फितर का त्यौहार मनाने का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में 2002 से जायद मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, टेक्सास, फ्लोरिडा, वर्जीनिया, मिशिगन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, जॉर्जिया और मैरीलैंड में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा वर्जीनिया की आदम सेंटर मस्जिद में हुआ जिसमें हजारों मुसलमान शरीक हुए। कोरोना वायरस के बायस 2 साल अमेरिका में हर किस्म के मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी थी, लेकिन अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं। मुसलमानों ने अमेरिका के तूलो अर्ज में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए। ईद पर अमेरिकी सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, कांग्रेस विमेन और आला सरकारी अफसरान मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं। अमेरिका में रहने वाले गैर मुस्लिम भी खुशदिली से मुसलमानों को मुबारकबाद देते और अच्छे जज्बात का इजहार करते नजर आते हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में ईद के रंग तो आपने देखे लेकिन चांद रात के रंग भी काबिले दीद थे। चांद रात पर अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में चांद रात मेलों का इनकाद किया गया जिसमें पाकिस्तानी नयाद कम्युनिटी ने भरपूर जोश खरोश से शिरकत की और शॉपिंग के साथ साथ हल्ला गुल्ला भी किया। चांद रात की गहमा गहमी पर देखते हैं वाशिंगटन से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट।
ईद उल फितर हो और शॉपिंग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। खुसूसन खवातीन और बच्चों की ईद तो होती ही शॉपिंग से है। ऐसे में ईद उल फितर की खुशियों के रंग को दुबाला करने के लिए अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में चांद रात पर चांद रात मेलों का इनेकाद किया गया। कोरोना वायरस की वजह से 2 साल के वक्फे के बाद इस साल पहली बार बगैर किसी सोशल डिस्टेंस के चांद मेले लगाए गए थे, जिनमें खवातीन बहुत बड़ी तादाद में शरीक हुई। I'm here for a Chandrat Mela event and this is a day before Eid, if you guys didn't know, and we have all of our Pakistanis gathered here, and I just wanted to say Eid Mubarak to all my Muslim families, and I hope you have a great Eid. Oh, it's late and there's like a lot of party going on, and Eid Mubarak everybody. I really like my Mehndi and Eid Mubarak. I wanted to go ahead and say that this is a great event. Very happy to be here and attend. Congratulations to all the sponsors. Wishing everyone a very happy Eid and Eid Mubarak. वक्त चांद रात मेले में है, बहुत अच्छा लग रहा है। It looks like we are in Pakistan. सब लोग मेहंदी लगा रहे हैं, शॉपिंग है, म्यूजिक, गाना, डांस, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन करें बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आयशा ने ये प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, इमरान राजा हैं, ये सब लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है। यहाँ चांद रात मेले पे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे हजारों की तादाद से लोग आए हुए हैं। कोविड के बाद ये आई थिंक पहली चांद रात है जिसमें ये माशाल्लाह बहुत रौनक है। एक खुशी का समा है। यहाँ DMV हम इसको कहते हैं, DC, मैरीलैंड और वर्जीनिया में एक बड़ी तादाद, एक कसीर तादाद है पाकिस्तानियों की। फैमिलीज आई हुई हैं, बहुत खुशी का माहौल है। चांद रात मेलों में कपड़ों, जूतों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी समेत मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के स्टॉल्स लगाए गए। बच्चियों ने इस मौके पर मेहंदी भी लगवाई। म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लोगों को खूब महसूस किया जाता रहा। चांद रात को मुनक्कदा मेले पाकिस्तानी सकाफत के आयनादार होने के साथ साथ लोगों की तफरीह के मरकज भी होते हैं, जहाँ एक छत तले खरीदारी कर ली जाती है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज, वाशिंगटन DC। यमन के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल फितर के इज्तिमात का एहतमाम किया गया, जहां सैकड़ों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। इदारा मिनहाज इंटरनेशनल, फ्रैंकफर्ट, पाकिस्तान, जर्मन प्रेस क्लब, जामिया मस्जिद, बैतुल सबूर, जामिया मस्जिद, पाक मोहम्मदी, फ्रैंकफर्ट और दीगर मकामात पर नमाज ईद का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिवायती अकीदत एहतराम के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की। मुख्तलिफ मकामात पर ईद उल फितर के भरपूर इज्तिमात हुए, जिनमें सैकड़ों मुसलमानों ने नमाज ईद की सादत हासिल की। इदारा मिनहाजुल इंटरनेशनल, फ्रैंकफर्ट और पाकिस्तान जर्मन प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई नमाज ईद उल फितर खुले आसमान के नीचे ईदगाह में अदा की गई। ईदगाह को पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचमों से सजाया गया था। लहराते कौमी परचमों ने ईद के माहौल को हुब्बुल वतनी के जज्बों से भर दिया। बच्चों ने खुली फजा में खूबसूरत मलबूसात के साथ खूब शरारतें की। फजा बच्चों के मासूम नारों से गूंजती रही। बच्चों ने ईद मुबारक पेश की। इस मौके पर पाकिस्तान, कश्मीर और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। हमारा आज इकट्ठा होना आपकी बारगाही को कबूल फरमा, हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारी नमाज को कबूल फरमा। या अल्लाह, कश्मीर फलस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी वाली ज़िंदगी अता फरमा। नमाजियों ने ईद की नमाज के बाद बच्चों में तहाइफ और टॉफियां तकसीम की, जबकि बड़ों के लिए रिफ्रेशमेंट का एहतमाम भी किया गया। जामिया मस्जिद पाक मोहम्मदी फ्रैंकफर्ट में नमाज ईद का इज्तिमा हुआ, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की और रवायती मजहबी जोशो खरोश के साथ ईद उल फितर की नमाज पढ़ी। Dass im nächsten Ramadan das Gleiche nochmal passiert, man nochmal weiter aufsteigt in seinem Glauben, in seiner Überzeugung, in seiner Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. नमाज ईद के बाद शुरका ने मुस्कुराते चेहरों के साथ एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद पेश की। जामे मस्जिद बैतुल सबूर में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बच्चों के हमरा नमाज ईद उल फितर अदा की। इस मौके पर शुरका ने बच्चों के साथ मिलकर खूब सेल्फियां बनाई। असगर मिर्जा, 92 न्यूज, जर्मनी।